Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we are going to discuss optical methods to monitor protein interaction in real time. Last time we discussed methods to study protein interaction through Y2H, and now we are going to discuss optical methods to visualize protein interaction in real time. In this way, you can visualize protein interaction in planta through optical microscope. As you know, protein act as fundamental machinery of life. Almost all molecules achieve their functions by interacting with each other. So, as the fundamental machinery of life, proteins are the more important kind of molecules in the cell and involved in interactions that account for many essential biological processes. For example, protein work in catalyzing reactions, signal transduction, every reaction of the cell, vesicle trafficking, budding, fusion, receptor dimerization, signal cascade, gene expression and regulation, metabolism, catabolism. Almost all cellular functions depend on and are executed by complex protein interactions. Protein can participate in protein DNA interaction, in protein substrate interaction, and most importantly in protein interaction. Protein interaction. Biochemical pathways and protein complexes are under research since 1960s, but at that time research was limited due to limited resources and techniques. Revolution in the study of protein interaction started with the advent of gene fusion and protein labeling with different fluorescent proteins, for example with green fluorescent protein and various other um, fluorescent protein, for example yellow fluorescent protein, cyan fluorescent protein. With the advent of gene fusion and protein labeling, the engineering of fluorescent probes cover the entire spectrum of life. अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, सबसे पहले ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन जो है वो डिस्कवर हुई थी. उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसकी बहुत सारे जो है ना वो अब वेरिएशंस जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं लैब में. अब वो जो है वेरिएशंस जो है वो कवर कर लेती हैं पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को. हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन है. हम येलो फ्लोरिसेंट प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं, हम सियान फ्लोरिसेंट प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे पास वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. उससे प्रोटीन इंटरेक्शन की जो स्टडी है वो बहुत ही फास्ट हो गई है. ऑप्टिकल मेथड्स टू मॉनिटर प्रोटीन इंटरेक्शन. हमारी जो एबिलिटी है किसी भी प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करने की, वो डिपेंड करती है आइडेंटिफाई कर सके हम इंटरेक्टिंग पार्टनर्स को एंड करेक्टराइज
हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेस एंड टाइम। हम एक तो ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उसके इंटरेक्टिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, वो किन किन के साथ इंटरेक्ट करती है और कहाँ पे इंटरेक्ट करती है। स्पेस एंड टाइम के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। करेक्टराइज हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेस एंड टाइम। Please make sure to enter in the class within 5 minutes. Because of the ability to provide spatial and temporal information, ये imaging tools, for example, FRET है और BIFT है. FRET based on Foster resonance energy transfer and bimolecular fluorescence complementation assay जो हैं, ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड्स बन गए हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करने के। अब अगर हम बात करें बिफ बाइमोलिक्यूलर फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन एसे के बारे में, तो बिफ एसे जो है ना, उनको मोस्टली प्रेफर किया जाता है फ्रेट पे, बिकॉज दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इंटरप्रेट। इनको इम्प्लीमेंट करना आसान है, इनको इंटरप्रेट करना आसान है, एंड लेस सेंसिटिव टू द रिलेटिव लेवल ऑफ द टू इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स। अगर एक इंटरेक्टिंग प्रोटीन का लेवल कम है और दूसरे का ज़्यादा है तो बीफ लेस सेंसिटिव है, जबकि जो दूसरे मेथड्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं मैम, क्लियर आ रही है बिल्कुल। पीछे थोड़ा शोर हो रहा है ना, इसलिए। रोटी नहीं खानी? काइंडली यार आप सारे अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दो जिन जिनका ऑन है। या मैम आप ऑफ कर सकती हैं सबके ना माइक्रोफोन, फिर शोर नहीं आएगा। आप ऑफ कर दें, म्यूट कर दें बाकी सबको। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था यीस्ट टू हाइब्रिड को। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी को हम कर सकते हैं यीस्ट टू हाइब्रिड से भी और बिस्क से भी। अब यीस्ट टू हाइब्रिड जो है वो हमें केमिकली शो करता है अपीयरेंस से, उसमें हमें विजुलाइज नहीं होता है कि सेल में कहाँ पर जाके प्रोटीन्स इंटरेक्ट कर रही हैं। ये जो ऑप्टिकल मेथड्स हैं, इनमें हम इन प्लांटा, एक प्लांट के लिविंग सेल के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं कि सेल में कहाँ पर जाके प्रोटीन जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं और नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही तो यीस्ट में हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यीस्ट में क्या है, हमने कहा था कि जो बेट है और प्रे है, अगर वो इंटरेक्ट करेंगी तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसकी कि डोमेन्स को हमने स्प्लिट किया हुआ है, एक डोमेन जो कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन है उसको हमने बेट के साथ फ्यूज किया है, and other domain that is the activation domain that is fused with the prey. Whenever bait and prey interact with each other, binding domain and activation domain comes in close proximity and will be able to recruit other transcription factors, so the downstream reporter genes will be able to express. अगर बेट एंड प्रे इंटरेक्ट नहीं करेंगी तो जो एक्टिवेशन डोमेन है और बाइंडिंग डोमेन है वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो है वो आके बाइंड नहीं करेगी अपस्ट्रीम एक्टिवेशन सीक्वेंस के साथ, और रिपोर्टर जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टर जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो मीडिया जिसके अंदर के ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स या कोई और टॉक्सिन प्रेजेंट है, उस मीडिया के ऊपर ये यीस्ट के सेल्स सरवाइव नहीं कर सकेंगे। क्लियर? अब आज हम स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल मेथड्स। ऑप्टिकल मेथड्स में अब ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाइमोलिक्यूलर फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन एसे, जिसको कि हम बिफ्क बोलते हैं, वो यूज़ किया जा रहा है।
यहाँ PCA स्टैंड कर रहा है प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन एसे के लिए। अब बाई मॉलिक्यूलर से आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें 2 किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन एसे, इसमें या तो हम 2 किस्म की प्रोटीन्स यूज कर लें या एक की डोमेन को जो है वो हम स्प्लिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो हमने YFP स्टैंड्स फॉर येलो फ्लोरिसेंट प्रोटीन के एन टर्मिनल को एक प्रोटीन के साथ फ्यूज कर दिया है एंड येलो फ्लोरिसेंट प्रोटीन के C टर्मिनल को दूसरी प्रोटीन के साथ फ्यूज कर दिया है। इनको फ्यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको हम एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो है वो ट्रांसफर करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम से हम अपने प्लांट को इन्फेक्ट कराएंगे और जब प्लांट को एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट करेगा तो ये प्रोटीन्स जो हैं प्लांट के अंदर, इनका जो DNA प्लांट के अंदर चला जाएगा और उसके अंदर एक्सप्रेस कर सकेंगी। जब ये अगर इन प्रोटीन्स के दरमियान इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, हम कैसे देख सकेंगे, ये जो येलो फ्लोरिसेंट प्रोटीन है इसकी एन डोमेन और इस एन टर्मिनल और C टर्मिनल जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगी। प्रोटीन कंप्लीट होगी तो जब हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सिग्नल रिसीव होगा। अगर इनके दरमियान इंटरेक्शन है तो क्या होगा, येलो फ्लोरिसेंट प्रोटीन कंप्लीट हो गई है। येलो फ्लोरिसेंट प्रोटीन के कंप्लीट होने की वजह से हमें येलो सिग्नल रिसीव होगा, येलो कलर की लाइट जो है वो एमिट होती नजर आएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि ये सेल में कहाँ पर रिसीव हो जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर में जो आपको नज़र आ रहा है ये सेल की बाउंड्री के साथ साथ एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, हमने दोनों देख लिए हैं, एक है Yeast-2 हाइब्रिड और दूसरा है बाई मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन एसे। इसमें हमने एक ही प्रोटीन के एन टर्मिनल को और C टर्मिनल को, आपको पता है कि एक प्रोटीन के 2 टर्मिनल्स हैं, एक एन टर्मिनल है और दूसरा C टर्मिनल है, उसमें हमने एक्टिवेशन डोमेन और बाइंडिंग डोमेन को स्प्लिट किया था। इसमें हमने एक प्रोटीन जो है फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो है उसको स्प्लिट कर लिया है एन टर्मिनल और C टर्मिनल। एक प्रोटीन के साथ हमने एन टर्मिनल को फ्यूज कर दिया है, दूसरी बेट के साथ हमने एन टर्मिनल को, प्रे के साथ हमने C टर्मिनल को। और जब भी बेट एंड प्रे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो एन एंड C टर्मिनल भी इनकी वजह से इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगी और प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस कर सकेगी। प्रोटीन एक्सप्रेस करेगी तो हमें विजुलाइज कर सकेंगे हम कि ये सेल के अंदर कहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं और इंटरेक्शन को भी हम रियल टाइम में देख सकेंगे, ठीक है। आई होप क्या समझ आई आपको। अब जब भी हम प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इन यीस्ट as well as in planta-based assay is often driven by constitutive strong promoter। अब प्रोमोटर के बगैर तो किसी भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं किसी भी प्रोटीन की तो ये हम खुद से चूज करते हैं कि हमने कौन सा प्रोमोटर जो है वो यूज़ करना है। मोस्टली अब जब हम यीस्ट या बिस्क ऐसे कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर्स, फॉर एग्जांपल हम उबिक्विटिन प्रोमोटर या आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा CAM-V35S प्रोमोटर, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर्स हैं, हम मोस्टली इनको यूज़ करते हैं। और इनके जो वेक्टर्स हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में उनमें भी ज़्यादातर यही प्रोमोटर्स जो हैं ये जो है वो उनके कंस्ट्रक्ट में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस कर रही है प्रोटीन तो इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन एबरेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मे बी अ कंसिक्वेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। इसकी जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें सेल के अंदर नज़र आएगी ना वो इस स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर की वजह से हो सकती है।
जब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, हमें फॉल्स रिजल्ट भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट टू हाइब्रिड टेक्निक के केस में ये प्रॉब्लम थोड़ा निग्लिजिबल है। क्यों निग्लिजिबल है कि उसमें जो हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम प्लांट की किसी प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो यीस्ट की तो जो है वो नेटिव प्रोटीन नहीं है, वो अपने नेटिव एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस नहीं कर रही है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यीस्ट के और प्लांट के कोडोन में डिफरेंस है, उनका पूरा एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो ये उसमें इस केस में थोड़ा निग्लिजिबल है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इज मॉनिटर्ड इन हेट्रोलोगस एनवायरनमेंट। लेकिन इन प्लांटा अप्रोच में अगर हम प्लांट में स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिफ्ट में, तो क्या है कि ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं ये होमोलोगस एनवायरनमेंट में है। जब ये होमोलोगस एनवायरनमेंट में है तो हमें देखने की ज़रूरत है, इन आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आर्टिफैक्ट्स को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हमें उसका नेटिव प्रोमोटर, जो प्रोटीन हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उसका नेटिव प्रोमोटर जो नेचर में उसका प्रोमोटर प्रेजेंट है उसको यूज़ करेंगे, तो नेचुरली वो प्रोटीन कितनी एक्सप्रेस कर रही है वो सिर्फ उसी लेवल तक एक्सप्रेस करेगी। अगर प्रोटीन सिर्फ उसी लेवल तक एक्सप्रेस करेगी तो हमें आर्टिफैक्ट्स से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने जो ओरिजिनल इंटरेक्टर्स हैं उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करेगी। उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि वो हमें फॉल्स रिजल्ट जो है वो दे। प्रोटीन कंसंट्रेशन इज अ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। वही बात है कि अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो जो नॉन इंटरेक्टर्स हैं उनके वो भी इसके साथ जो है एसोसिएट हो सकते हैं और हमें फॉल्स रिजल्ट मिल जाते हैं कि ये इसके पॉसिबल इंटरेक्टर है। ये तरीका तो ये है कि हम इसके नेटिव प्रोमोटर को यूज़ करें ताकि प्रोटीन जो है वो अपने ओरिजिनल लेवल तक ही एक्सप्रेस करे, ना ये ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस करेगी और ना हमें फॉल्स रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा, इंटरेक्शन डेटा किसी भी एक टेक्निक पे हम रिलाई नहीं करते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके हम जो है वो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये रिलायबल है। फॉर एग्जांपल एट अ टाइम हम सिर्फ यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के रिजल्ट पे जो है वो रिलाई नहीं करेंगे, हम यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम भी करेंगे, हम बिफ भी करेंगे, और साथ में हम एक और मेथड है जिसे पुल डाउन बोलते हैं, और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोटीन एक एंटीबॉडी है तो वो अपनी डिज़ायर्ड प्रोटीन के साथ ही इंटरेक्ट करेगी। अगर इंटरेक्शन होगा तो फिर हम उनको पुल डाउन करके हम उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके जेल के ऊपर रन करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये जनरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और क्रिटिकली इवेलुएट किया जाता है इनके रिजल्ट्स को, फिर ही हम श्योर होते हैं कि ये बाकी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। अभी हमने देखा है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस डिपेंड ऑन और एग्जीक्यूटेड बाय कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती हैं, प्रोटीन कैन आल्सो इंटरेक्ट विद द डीएनए एंड अदर मॉलिक्यूल्स as well. For example, that may be a carbohydrate, that may be a lipid, some metal ions. But here we are interested in most important form of protein protein interaction. protein protein interaction अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 90s से ही प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन और बायोकेमिकल पाथवेज को स्टडी किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम जो है वो मोलेकुलर टेक्निक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी और ना ही हमारे पास ऐसी एडवांस्ड जो है इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल थी। तो जीन फ्यूजन एंड प्रोटीन लेबलिंग टुगेदर विद द इंजीनियरिंग ऑफ फ्लोरेसेंट प्रोब्स
covering the entire spectrum of life. इनसे entire spectrum of light, इनसे क्या हुआ, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की जो स्टडी है उसमें एक रेवोल्यूशन जो है वो आ गया। अब डिफरेंट मेथड्स जो है यूज किए जा सकते हैं फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर बिफ, इनको स्टडी करने के लिए हमने देखना है कि दो प्रोटीन्स जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, और अगर करती हैं स्पेस एंड टाइम कहाँ पे करती हैं ना, दो हमारे जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए हमारी एबिलिटी डिपेंड टू आइडेंटिफाई इंटरेक्टिंग पार्टनर्स एंड करेक्टराइज हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेस एंड टाइम। तो दो इमेजिंग टूल्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक है फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर एंड है दूसरा है बायोमोलिकुलर फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन एसे। फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में क्या है कि स्पेशल रेजोनेंस की उनकी एनर्जी मैच करेगी। फॉर एग्जांपल दो फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो हैं वो यूज़ करेंगे और उनकी जब रेजोनेंस जाहिर है वो लाइट एमिट करेंगी और उनकी कंबाइंड एनर्जी से एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, फिर उसको डिटेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं बायोमोलिकुलर फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन ऐसे। अब मोस्टली जो है सारी एडवांस्ड लैब जो है वो इसी को ही यूज़ कर रही हैं बजाय के फ्रेट के। अब फ्रेट की बजाय बिफ को क्यों जो है वो प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट। एक दफ़ा आपने जो है वो वेक्टर्स जो हैं वो बना लिए हैं, बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपनी सिर्फ बेट एंड प्रे को ही वहाँ से रिप्लेस करेंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर के अंडर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको दोबारा से पूरा का पूरा वेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसको रिप्लेस कर लेंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट वहाँ पे प्रोटीन है। इसको इंटरप्रेट करना आसान है एंड लेस सेंसिटिव टू द रिलेटिव लेवल्स ऑफ द टू इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स। दैट इज व्हाई बिफ इज प्रेफर्ड ओवर फ्रेट। हियर इज द concept of Y2H in which bait and prey are fused with the two domains of a transcription factor. The most commonly used transcription factor is GAL4, and here is the concept of BIF. The fluorescent protein is split into two parts. Its N terminal is fused with bait or its C terminal is fused with prey. Whenever bait and prey interact with each other, N terminal and C terminal of the fluorescent protein comes in close proximity and will able to emit light. और फिर हम जो लाइट है उसको जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, कॉमन माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये सेल में कहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। बेटर आइडिया जो है वो आपको लेज़र स्कैनिंग लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो उससे होगा। अब हम प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होगी। अगर प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो जो इसके नॉन इंटरेक्टर्स हैं प्रोटीन, उनके साथ भी इंटरेक्शन शो करना शुरू कर देगी। हमें फॉल्स रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि ये इसका इंटरेक्टर है, ऑल्दो उसका नॉर्मल कंडीशन में वो इस प्रोटीन का इंटरेक्टर नहीं होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, एक मेथड तो ये है कि आप प्रोटीन को उसके नेटिव प्रोमोटर के अंडर एक्सप्रेस करवाएं। अब आप अगर कोई प्रोटीन करेक्टराइज्ड नहीं है तो आप उसका नेटिव प्रोमोटर कैसे फाइंड करेंगे? आप क्लोन कर सकते हैं, आप ऐसे प्राइमर्स डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप उसका जहाँ से उसका स्टार्ट कोडोन है उससे अपस्ट्रीम 2 kb अपस्ट्रीम तक के रीजन को एम्पलीफाई करें और उसको वहाँ पर क्लोन करें। पॉसिबली उसी के अंदर उसका जो है वो प्रोमोटर जो है, नेटिव प्रोमोटर जो है वो उस रीजन में ही है। एक तरीका तो ये है कि आप उसको उसके नेटिव प्रोमोटर के अंदर एक्सप्रेस करवाएं, और दूसरा मेथड ये है कि आपने सिर्फ एक ही प्रोटीन पे जो है एक ही मेथड पे रिलाई नहीं करना, एक से ज़्यादा मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम श्योरिटी से कह सकें कि वाकई
ये इस प्रोटीन का इंटरेक्टर है या नहीं है। ठीक है, डाटा को क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता है और कंपेयर किए जाते हैं रिजल्ट्स को। एक से ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। अगर तीनों टेक्निक से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये वाकई आपस में इंटरेक्ट करती हैं। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ मैं।